Sure. So, hello everyone. My name is Bandul Bansal. I'm co-founder of CruiseFair. So, I'm a serial entrepreneur working in different domains. I started as a college entrepreneur myself, and build different companies out of it. Then today, now we are building a company for called CruiseFair, which is the ICP India Hub. ICP is an L1, just like an Ethereum. That's a brief intro about myself. Before we start the session, I have some requests for all of you. Can you please turn on your cameras? Because that will be very easier for us to communicate and to drive the session, because we'll be able to read your inputs and how you are doing it, and the session will be more interactive in such a way. So we can wait for a minute, and I believe you guys are at home, so you must be at ease. So you can prepare yourself and you can turn on your cameras in a minute, and if possible for you. So I'll wait for a minute so that you guys can turn on your cameras. I believe a lot of you cannot share your camera, so that so we haven't seen any pictures or your DPs. But yeah, so my chat section is also open. So in case you want to discuss anything, or you have any query, or you have any follow-up question, so feel free to ask it in the chat section itself, so that we can continue from there itself. So who we are formally, I'm Bandal Bansal. I've worked with approximately 200 with three companies. I've been in the space for from 2015, and have worked vigorously with various other companies. And I built the biggest Web3 education platform called FinStreet. Now it's acquired. I've been invested into this driven startup, and worked in various capacities with all these startups. So my co-founder is Mr. Deepak Goyal. He's an IIT alumni himself, and he's a 2008 graduate, and is a technologist himself, and has nurtured and mentored various edtech startups in the past. His own edtech startup called Edusquare was acquired by an academy last year only. And he's a hardcore educationalist and worked with various domains. Now he's helping me out to build this community of amazing folks in Web3, and so that everybody can leverage and everybody can learn from here. So that's about us, and that's the idea, that who are the founders and what we are doing. What can you do? So I'll directly come to the point, that what is it for you in this workshop, and why are we doing this? So CruiseFair, how many of you know about Bitcoin blockchain in general? So if you know about blockchain, or Bitcoin in general, you can say yes in the chat box. If you don't know about it, you can say no about it. राइट. सो गाइस, जिनको पता है बिटकॉइन या ब्लॉकचेन के बारे में, वो यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में. जिनको नहीं पता, जिनको कोई भी ऐसा है कि दे आर कंप्लीटली न्यू भी, तो वो नो भी लिख सकते हैं. तो दैट्स इट. तो माय चैट बॉक्स इज ओपन. तो बहुत सारे बच्चों को पता है ऑलरेडी, आई बिलीव, और काफी लोगों को नहीं भी पता. राइट. अगर आपका यार कोई भी क्वेरी आती है, तो यू कैन डायरेक्टली पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स. माय चैट बॉक्स इज ओपन, तो आई विल आंसर योर क्वेरीज इन बिटवीन आल्सो. सो या जिनको नहीं पता, बिटकॉइन 2008 में स्टार्ट हुआ था. आप सबने प्रॉब्ली नाम सुना ही होगा. सो बिटकॉइन वाज फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन इज एन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, एंड बिटकॉइन इज अ टॉप प्लेयर जो एक प्रोडक्ट बन के दिखा था, जो कि एक डिजिटल एसेट की तरह बिलीव करता है. ट्रू डिजिटल एसेट. ट्रू डिजिटल एसेट का मतलब क्या है? कि वो एसेट जो अपने आप से ट्रेड हो सकता है, और अपने आप से हम उसके साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. यहाँ पे वो एक ग्लोबल एसेट है, उसको कोई कंट्रोल नहीं करता. ये सारी उसमें प्रॉपर्टीज थी as a for being a digital asset. So it was the first implication of blockchain. But yes, eventually blockchain में बहुत सारी और जो चीजें हैं वो भी आई हैं. उसके बाद जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब आई, जब लोगों को लगा कि अच्छा यार, एक डिजिटल एसेट इसके ऊपर क्रिएट किया जा सकता है, और क्या क्या किया जा सकता है, तो लोगों ने सोचा यार कि ब्लॉकचेन के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है. द प्रॉब्लम इज कि बिटकॉइन इज ट्यूरिंग कंप्लीट. दैट इज कि उसका कोड अपने आप में क्लोज कोड है, उसके ऊपर आप कोई डेवलप नहीं कर सकते. उसके साथ उसको यूज कर सकते हैं एज ए डिजिटल एसेट फॉर श्योर, बट उसके साथ आप कुछ बिल्ड नहीं कर सकते. तो इथेरियम केम टू इस सोल्यूशन, जहां पर उन्होंने एक प्रोग्रामेबल लैंग्वेज बनाई, सॉलिडिटी, एंड विच वाज वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो ब्लॉकचेन अब अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी थी. अब उसके ऊपर एक ट्यूरिंग इनकम्प्लीट
लैंग्वेज बनाई गई और ट्यूरिंग इनकम्प्लीट बनाया गया उसको सॉफ्टवेयर वाइज, ताकि उसके ऊपर और चीजें डेवलप की जा सके। तो इथेरियम के ऊपर बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, फाइनेंस एप्लीकेशंस और वो सब कुछ बना। एंड देन उससे जो था वो इकोसिस्टम बनना शुरू हुआ। बट इथेरियम वाज द फर्स्ट वन टू डू दिस। बट इथेरियम ने ये नहीं सोचा था बनाते वक्त कि वो कितना स्केल कर जाएंगे, राइट? तो इथेरियम वेंट वायरल और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने, बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनी। आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा कि इथेरियम के ऊपर गैस फीस की प्रॉब्लम हो जाती है, या इथेरियम के ऊपर ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा लगती है। वो इसलिए कि उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी और उसके ऊपर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बनने शुरू हो गए। तो ये लोग कितने लोगों को पता है ये बात कि इथेरियम के ऊपर गैस फीस वाले प्रॉब्लम आती है? अगेन यू कैन टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। नहीं पता तो कईयों को पता है, कि कईयों को नहीं पता। तो इथेरियम के ऊपर गैस फीस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहनी पड़ी और उसके ऊपर भी एक खुद की लिमिटेशन थी। और एक सबसे बड़ी लिमिटेशन जो और थी इथेरियम की, वो ये थी कि इथेरियम वेब 2 के ऊपर ही डिपेंडेंट था। जैसे इथेरियम के बहुत ऑलमोस्ट सारे नोड जो थे वो AWS के ऊपर थे और AWS के ऊपर ही चल रहे थे। तो अगर कल को अमेजोन चाहे तो अमेजोन कैन शट देम आउट, राइट? उनको बंद करवा सकता था। उसी तरह से जो इथेरियम था उसके और भी प्रॉब्लम थी कि उनके पास अपने सर्वर फार्म्स नहीं थे। तो उस वजह से बहुत थी। अगर उनको कंप्यूट कराना अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उनके ऊपर अपने कंप्यूटेशनल इंजीनियर्स नहीं थे, उनके पास वो वो कंप्यूटेशनल पावर नहीं थी बैक एंड पे जो उसको सपोर्ट करा सके। तो ये सब कंसर्न थे कि वो बहुत ज्यादा वेब 2 के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो जब इथेरियम स्केल किया तो एक जो इमीडिएट रिस्क वेक्टर आया वो ये आया कि इथेरियम उतना स्केल ही नहीं कर सकता जितना रिक्वायरमेंट है, राइट? तो उसकी ट्रांजेक्शन फीस बहुत ज्यादा लगने लगी लोगों के। तो 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार ट्रांजेक्शन फीस लगने लग गई एक एक ट्रांजेक्शन के लिए, विच वॉज वेरी हाई, राइट? दूसरी प्रॉब्लम जो फ्यूचर में आ सकती है, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, वो ये है कि इथेरियम कैन बी शट डाउन। अगर लोग चाहें, जो वेब 2 वाली बड़ी कंपनी है, कल को अमेजोन चाहेगा तो अमेजोन कैन शट डाउन इथेरियम, क्योंकि वो सर्वर सारे AWS के यूज कर रहे हैं। AWS जिनको नहीं पता, अमेजोन वेब सर्विस। तो आईसीपी भी एक ब्लॉकचेन है। आईसीपी इसके सोल्यूशन के साथ आया। आईसीपी ने बोला कि हम वेब 2 को हटा देंगे, इनफैक्ट हम TCP IP भी यूज नहीं करेंगे, हम लोग कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज नया इंटरनेट बनाएंगे और उस इंटरनेट के ऊपर आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं और उसको कोई वेब 2 की कंपनी भी बंद नहीं कर सकती। सो दैट वाज द आइडिया, राइट? और उससे क्या हुआ कि अब ये पूरा का पूरा इंडिविजुअल था और ये काफी ज्यादा स्केलेबल भी था। तो ये हॉरिजॉन्टली स्केल कर रहे थे सबनेट्स के थ्रू। तो इनका बेनिफिट क्या था कि ये इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस भी जो है थियोरेटिकली ये इनफाइनाइटली स्केल कर सकते हैं और इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस पर सेकंड जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत फास्ट था, बहुत चीप था और डिसेंट्रलाइज था और वेब 2 की कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो वेब 2 कैन नॉट शट इट डाउन। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो वो तो आईसीपी के बारे में ये है। तो ये आज से 10 साल पहले क्रिप्टोग्राफर्स ने 2016 में ही शुरू की थी और सारे दुनिया के बहुत ज्यादा स्मार्टेस्ट आज के टाइम में जो क्रिप्टोग्राफर्स या क्रिप्टोग्राफी रिसर्चर्स हैं वो आईसीपी पे काम कर रहे हैं। ये ज़ुरिक बेस्ड है, स्विट्जरलैंड। इनके फिर नेक्स्ट ऑफिस बने यूएस में। अभी ये लैटम, सिप्रस यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं और हमने इनको किस तरह से कन्विंस किया कि दे शुड आल्सो कम टू इंडिया, बिकॉज इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, बोथ इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स एंड यूजर्स। और तो उन्होंने अपनी इंडिया ग्रोथ के लिए हमें अपॉइंट किया है, हमारी ऑफिशियली कंपनी को अपॉइंट किया है, विच इज क्रूजफेयर। तो क्रूजफेयर अब आईसीपी को इंडिया में एक्टिवेशन एक्टिविटीज और अदर एक्टिविटीज के थ्रू ग्रो करवा रही है। तो इसीलिए हमारा नाम जो पूरा है वो क्रूजफेयर आईसीपी इंडिया हब है। ना अगर हमें इसके लिए करना है तो हम लोग एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। जैसे गूगल ने, फेसबुक ने आज से 5-7 साल, 10 साल पहले अपना इकोसिस्टम बिल्ड किया था, उसी तरह से हम आईसीपी के लिए इंडिया का इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। सिंस आईसीपी इज ह्यूज ब्लॉकचेन और ये मतलब अपने आप में $5 बिलियन की कंपनी है और इनका $220 मिलियन का फंड है जो ये डिप्लॉय करना चाहते हैं थ्रू ग्रांट्स एंड टू अदर स्टफ अपने डेवलपर्स के लिए। एंड आई बिलीव इससे 20-30 मिलियन या 50 मिलियन एटलीस्ट इंडिया आना चाहिए। उसी के लिए हम लोग ये डेवलप कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि दिस इज द न्यू इकोसिस्टम इन इंडिया। एक ग्लोबल फिनोमिना है जो इंडिया आ रहा है एंड ऑब्वियसली जो इसके अर्लियर डेवलपर्स होंगे उन्हें हर तरह से फायदा मिलेगा, चाहे उनको फंडिंग चाहिए, चाहे उनको ग्रांट्स चाहिए। तो वो सब है। मैं एक बार एक एक करके बताता हूँ कि आपको किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है इसमें और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो अगर आप एक डेवलपर हैं, तो अगर आप Web3 डेवलपर हैं या बनना चाहते हैं कि एस्पायरिंग डेवलपर हैं, अभी आपको डेवलपमेंट का कुछ नहीं आता, तो हम आपकी किस तरह से हेल्प करेंगे? तो हम डेव कोहोर्ट स्टार्ट करेंगे। हमने आईआईटी खड़गपुर के साथ भी किया, आईआईटी कानपुर के साथ भी किया, आईआईटी रुड़की के साथ भी किया है और वेरियस अदर कॉलेजेस के साथ चल रहा है। ये कोहोर्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। पहली बात तो इस इकोसिस्टम में हम आपको जो भी देंगे, जो भी बढ़ाएंगे, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यू डोंट इवन हैव टू पे सिंगल पेनी। इनफैक्ट अगर आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए कहीं ट्रैवल भी करेंगे तो आपकी इंटर्नशिप की स्टाइपेंड से लेकर के आपकी ट्रैवल टिकट्स, आपके रहने का खर्चा, आपके आने जाने का खर्चा, वहां पे हर चीज, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय अस ओनली,
सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो ये एक कोहोर्ट कंप्लीटली फ्री होगा। इसमें हम लोग बिल्कुल ग्राउंड अप जो है डेवलपमेंट सिखाएंगे और आपको ब्लॉकचेन डेवलपर बनाएंगे। आपको बिल्कुल HTML CSS या फिर अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी नहीं आती तो आपको JS से शुरू कराकर हम आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट जाएंगे। अगर आप JS जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी जानते हो तो आपको हम एक फास्ट पेस कोहोर्ट में डाल देंगे, वहां से आप डायरेक्टली ब्लॉकचेन सीख सकते हो। तो यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस। तो एज अ डेवलपर आपके पास ये ऑप्शंस रहेंगे। दूसरी बात ये है कि हम लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी जो ब्लॉकचेन एजुकेशन कंपनीज है उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे कि वन ऑफ द कंपनीज इज पतिका, जिसके साथ मैं ऑलरेडी टॉक्स में हूँ। तो उनका वो एक डेवलपर कोहोर्ट करते हैं, US बेस्ड कंपनी है, एंड दे चार्ज $5,000 फॉर देयर डेवलपर कोहोर्ट। जनरली व्हाट वी डू इज कि हम लोग उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं कि हम 100 स्कॉलरशिप देंगे। तो $5,000 के उस कोहोर्ट की फीस जो होगी वो पेड बाय अस होगी। इट्स अ ऑनलाइन कोहोर्ट, तो आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे और जो भी लोग सिलेक्ट होंगे ऑब्वियसली स्कॉलरशिप के लिए। तो हम लोग उसमें $500,000 की स्कॉलरशिप देंगे स्टूडेंट को हमारी कम्युनिटी में से। 100 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड और इन 100 स्टूडेंट्स को हम लोग को $5,000 का कोहोर्ट फ्री में देंगे ज्वाइन करने के लिए, जो जाकर ज्वाइन कर सकेंगे। साथ ही साथ हम लोग इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है क्विल ऑडिट्स, तो क्विल ऑडिट्स के साथ भी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं कि हम लोग ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के ऊपर प्रॉपर कोर्सेज लेकर आए, जो आपको इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाएंगे। तो आपको उसमें इंडस्ट्री, ये सारे कोर्सेज इंडस्ट्री फ्रेंडली है। इसके बाद आपको इंडस्ट्री में जाके एक्चुअल में जॉब्स मिलेंगी इसके थ्रू। तो उनके साथ क्विल ऑडिट के साथ करें ताकि हम ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के ऊपर भी कोर्स लेकर आ सकें, जो आप लोग अगेन ज्वाइन कर सको। वो भी जो कोर्स है $500 टू $1,000, 40,000 टू 80,000 रुपीज के बीच में वेरी करेगा। वो भी हम लोग एज ए स्कॉलरशिप ही देंगे। अगेन हम फ्यूचर में जो है फेलोशिप प्रोग्राम्स भी लेकर आ रहे हैं। फेलोशिप प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि हम लोग आपको पैसे देंगे तो डेवलप वंस यू कंप्लीट दिस कोर्स और आप एक बार डेवलपर बन गए, अगर आपको ICP पे डेवलप करना आ गया, आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन गए, देन you can apply for developer fellowships. Developer fellowships का मतलब क्या है कि we'll be covering your monthly expenses. It will range from $500 to $1,000 a month. तो 40,000 से $80,000 आपको मिलेंगे आपका आइडिया, जो भी आपका आइडिया होगा उसको बिल्ड करने के लिए। आप अपने आइडिया को बिल्ड करेंगे एज ए डेवलपर और उसके लिए हम आपको जो फेलोशिप है वो देंगे। अगर उसके बाद आप चाहें तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी और कंपनी के साथ। अगर आप चाहते हैं जॉब लेना तो आप जॉब ले सकते हैं, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो ये है फॉर यू एज अ डेवलपर। अब स्टडी अब्रॉड, सिंस ICP इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और इनके जो हब्स हैं वो हर जगह हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ यू टुमारो आप यहाँ पे कॉलेज चैप्टर शुरू करते हो अपना इंडिया, टुमारो यू वांट टू मूव टू MIT और आपका अगर फॉरेन MS का या किसी चीज का प्लान है, तो आप वहां जाकर वहां के लोकल हब्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां पे आपको स्टाइपेंड भी मिल जाएगी एंड सेकेंडली यू कैन वर्क फॉर देम। एक और बेनिफिट उसमें ये है कि आप जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे तो ये सर्टिफिकेट्स और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इफ यू हैव अ प्लान टू स्टडी अब्रॉड और आप इसके बाद अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, देन ऑल्सो आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और सेकेंडली अगर आप कोर क्रिप्टोग्राफी में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए हेवन है, बिकॉज यहाँ पे ये अभी पूरी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्रिप्टोग्राफर्स के लिए काम करने के लिए। अगेन अगर आप चाहते हैं जॉब लेने के लिए तो बहुत सारी कंपनीज है, वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद 200 ब्लॉकचेन कंपनीज। हम आपका रेज्यूमे फ्लोट करा सकते हैं, हमारा उनके साथ भी क्लोज कम्युनिटी है। इफ यू वांट टू गेट अ जॉब, आपको वहां से जॉब मिल सकती है स्ट्रेट आउट ऑफ योर पैकेज। और ब्लॉकचेन जो अभी जॉब्स हैं वो मार्केट बहुत ज्यादा हॉट है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन रिपोर्ट, लास्ट 3 सालों की एवरी ईयर कंसेक्टिवली जो हाईएस्ट पेइंग जॉब थी वो ब्लॉकचेन डेवलपर ही थी। तो अगर आप एक सीनियर ब्लॉकचेन डेवलपर है, सीनियर ब्लॉकचेन डेवलपर का मतलब अगर आपने 2 साल ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में काम किया है, इट कैन बी कि आप कॉलेज पास आउट हो सकते हैं, हमने सेकंड ईयर से शुरू किया, फोर्थ ईयर तक आप आपने 2 साल हो गए, तो आपको $60,000 से $150,000 तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इंडिया में बात करूं तो एनीवेयर बिटवीन 50 lakhs टू 1.3 करोड़ 1.4 करोड़ के पैकेजेस आपको मिल सकते हैं विद इन इंडिया, अगर आप वर्क फ्रॉम होम पर भी लेना चाहते हैं। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एंटरप्रेन्योर है, इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने पहले केस में बताया कि अगर आप एज ए डेवलपर, हम आपको फेलोशिप देंगे और अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे वंस यू आर अ ब्लॉकचेन डेवलपर। तो एज एन एंटरप्रेन्योर द बेस्ट बेनिफिट दैट यू हैव इज कि आप ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा $220 मिलियन का फंड है, जिसमें से हम ग्रांट्स देंगे और ये इक्विटी फ्री ग्रांट्स होंगे, यानी कि हम आपसे इक्विटी भी नहीं लेंगे एंड आप वो ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन विल गिव यू ग्रांट्स बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आपको पहले ग्रांट देंगे। जैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट आ जाएगा तो पहली ग्रांट छोटी होती है, एनीथिंग बिटवीन $5,000 टू $50,000, यानी कि 40 लाख रुपीज तक की अपर लेवल पे। तो अगर हम आपको उतनी ग्रांट देंगे
एंड देन जब आपका एक बार प्रोडक्ट मार्केट फिट आ गया, आपका पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट है और आपने उसको एक बार अर्ली यूजर्स लिया, तो आप फंडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बिगर ग्रांट जो कि आपके 250K तक जाती है ग्रांट, जो अप्रोक्सीमेटली 2 CR। उसके बाद अगर आप वो भी लेवल क्रॉस करते हैं तो हम आपको वीसी कंसोर्टियम से कनेक्ट कराएंगे, तो आप वीसी से भी पैसे उठा सकते हैं। वो वीसी कंसोर्टियम भी आईसीपी का खुद का ही है, तो विल कनेक्ट यू विद दैट वीसी कंसोर्टियम ऑल्सो, जहाँ से आप फंड रेज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एंटरप्रेन्योर के लिए। अब आप लोग पूछोगे यार एज ए डेवलपर जब आप कोचिंग दे रहे हो, मैं तब फ्री दे रहे हो, कोर्स फ्री हैं, अगर हम हाई लेवल कोर्सेज कर रहे हैं तो कोर्सेज में आप स्कॉलरशिप दे रहे हो, अगर हमें जॉब चाहिए तो आप जॉब लगा रहे हो, उसके लिए भी आप कुछ नहीं ले रहे, अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आप हमें ग्रांट्स दे रहे हो इक्विटी फ्री। व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस? बिकॉज आईसीपी इज अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। जैसे एक टाइम पे गूगल था, एडब्ल्यूएस था, तो एडब्ल्यूएस भी बहुत लोगों को पता होगा कि फ्री क्रेडिट देता था लास्ट से 2 साल पहले तक भी। और गूगल का चेक करना, एक गूगल ऑनलाइन मार्केटिंग चैलेंज होता था, तो उसमें वो एडवर्ड्स फ्री देते थे और साथ में आपको बेसिकली प्राइस मनी भी देते थे अगर आप उसमें से अच्छी एड्स लाते थे लोकल बिजनेसेस के लिए। तो हर कंपनी को अपना इकोसिस्टम बनाने के लिए पहले बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। इस टाइम पे आईसीपी कर रही है, तो यू हैव दैट लेवरेज कि आप यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं टू योर फुलेस्ट, एंड आप उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी को कैश इन कर सकते हैं। यहाँ तक किसी के कुछ भी डाउट है यार, कोई कुछ पूछना चाहता है इस चीज पे, कोई क्लैरिटी चाहता है तो पूछ सकता है। मैं चैट बॉक्स इज ओपन, तो अगर किसी के पास कुछ भी इस यहाँ तक के डाउट है अगर अपॉर्चुनिटीज के लिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और अगर वो कुछ इन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर और डिस्कशन करना चाहते हो तो मैं चैट बॉक्स इज ओपन, आप वहां लिख सकते हो। अदरवाइज आप अपने आप को अनम्यूट करके यू कैन स्पीक ऑल्सो, वो भी कोई चक्कर नहीं है। इवन इफ यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन तो आप वो भी कर सकते हो, तो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चल सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में या अनम्यूट करके खुद को पूछ सकते हो, विद इन द सेशन भी पूछ सकते हो, राइट। तो गाइज ये था उसके बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में। नाउ अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज वेब 3, तो वेब 1, वेब 2, वेब 3 एक बार समझा देता हूँ। कितने लोगों को वैसे पता है कि वेब 3 क्या है? वो अभी ऐसे या नो लिख सकते हो, ये काफी लोगों को पता है वेब 3 क्या है। तो मैं एक बार बहुत ही जल्दी से समराइज कर देता हूँ। वेब 1 था यार जब आप इंफॉर्मेशन सिर्फ वन वे थी, यानी कि वेबसाइट्स आपको इन्फॉर्मेशन देती थी, लाइक न्यूज़पेपर्स। तो वेबसाइट के ऊपर जनरली रिटन कंटेंट होता था, ब्लॉग्स होते थे, आप जाके पढ़ सकते थे, एंड दैट्स इट। आप उससे इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे। वेब 2 में क्या हुआ कि अब पहले वो जो कंटेंट था वो वेबसाइट बना रही थी, आप उसको कंज्यूम कर रहे थे। अब क्या था, वेब 2 में कंटेंट बना भी आप रहे थे और कंज्यूम भी आप कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, कि आप फोटो डाल भी रहे हो और देख भी रहे हो, आप देख किसके रहे हो, अपने दोस्त की देख रहे हो, तो वो भी एक एंड यूजर है। आप इंस्टाग्राम का कंटेंट नहीं देख रहे हो, इंस्टाग्राम कोई फोटो नहीं बनाता, अपनी फोटो नहीं डालता, फोटो आप खुद ही यूजर्स ही डाल रहे हैं और यूजर्स ही देख भी रहे हैं। तो पर इसमें जो सारा कंट्रोल था, जबकि एंड प्रोडक्ट यानी कि एंड में यूजर भी आप थे और प्रोडक्ट के क्रिएटर भी आप थे, बट जो सारा बेनिफिट था वो प्लेटफॉर्म ले जाता था। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, इनके पास बहुत ज्यादा पावर आ गई और ये पावर सेंट्रिक बन गए, एंड इन्होंने ये सारी पावर्स को मिसयूज करना शुरू कर दिया और सारी वैल्यू भी इन्हीं के पास जा रही थी, आपको एज ए क्रिएटर कुछ भी नहीं मिल रहा था। वेब 3 ने क्या चेंज करा कि अब आप कंटेंट डाल भी आप रहे हो, कंटेंट कंज्यूम भी आप कर रहे हो, या जो एक्टिविटी कर रहे हो वो भी आप ही कर रहे हो, प्लस जो उसकी ओनरशिप है वो भी डिसेंट्रलाइज हो गई। तो अगर आप यूजर हो तो ओनरशिप भी आपके पास है और वो बेनिफिट्स भी आपको पास ऑन होंगे। तो अगे तो इसमें अब 3 एंगल आ गए कि आप क्रिएट भी कर रहे हो, आप कंज्यूम भी कर रहे हो और आप ओन भी कर रहे हो। तो दैट वाज द बिगेस्ट डिफरेंस। तो फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप ब्लॉग, पहले आप मीडियम पे ब्लॉग डाल रहे थे, तो कंज्यूम भी आप कर रहे थे, डाल भी आप जैसे कोई रहा था, बट आपको बेनिफिट नहीं को मिल रहा था। पर अगर आप वेब 3 में डालते हो तो उसमें जो आपका ब्लॉग है वो एक एनएफटी बन जाएगा और उसकी ओनरशिप राइट्स आपके पास रहेंगे, तो आपके लिए वो एक एसेट बन जाएगा, राइट। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? और अगर कुछ क्वेश्चन है तो यार प्लीज फील फ्री टू आस्क, अनम्यूट करके भी और कमेंट्स में भी, तो वो हमेशा ओपन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रूज फेयर। तो क्रूज फेयर में आपको बता देता हूँ कि इंडिया का इनिशिएटिव है हमारा, जहाँ पे हम लोग ब्लॉकचेन डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एंथुसियास्ट का मतलब इफ यू वांट टू गेट इनटू एनी अदर फील्ड, यू वांट टू क्रिएट कंटेंट अराउंड इट, आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, आप कुछ और करना चाहते हो, और आप डिजाइनर हो जो ब्लॉकचेन में स्पेसिफिकली काम करना चाहते हो, तो ऑल दी सर्विसेज जो प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ हम लोग एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो दैट वाज द आइडिया जो हम लोग बिल्ड कर रहे थे विद क्रूज फेयर।
तो साथ ही साथ अगर हम लोग इसमें बात करें तो हम लोग एक पैन इंडिया इकोसिस्टम बना रहे हैं। वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू मोर देन 25 यूनिवर्सिटीज और हम इसको 100 यूनिवर्सिटीज तक ले जाएंगे बाय नेक्स्ट क्वार्टर। तो इसमें प्लान क्या था कि हमने सारे ऑलमोस्ट IITs NITs और ये सारे जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं हम इनको कवर कर रहे हैं और इनके साथ यहाँ पे लोकल कॉलेज चैप्टर्स खोल रहे हैं ताकि ये कॉलेज चैप्टर से लोग एंगेज हो सके और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ जा सके। जो नेक्स्ट है कि व्हाट वी विल डू, हम लोग आपको राइट मेंटरशिप देंगे और फंड देंगे। तो इट्स अ कम्युनिटी जहां पर आपको ICP के साथ काम करने का मौका मिलेगा डायरेक्टली। अगर आपको फंड चाहिए तो हम आपको फंड देंगे, अगर आपको मेंटोर्स चाहिए तो मेंटोर्स देंगे, सेशंस होंगे, आपकी जो भी एक्टिविटीज है। फॉर एग्जांपल अगर आप कल को ब्लॉकचेन हैकाथॉन कराना चाहते हैं अपने कॉलेज में, यू कैन डू दैट। हम आपको फंड कर सकते हैं, आपको उसके लिए फंड से वो कर सकते हैं। अगर आप एक सेशन करवाना चाहते हैं कोई ब्लॉकचेन के ऊपर तो वी कैन गिव यू स्पीकर्स। अगर आप कुछ स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं या फिर एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाहते हैं तो हम आपको मेंटोर्स और फंड दे सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअली भी स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो तो हम आपको मेंटोर्स दे सकते हैं, मेंटरशिप दे सकते हैं, ग्रांट्स दे सकते हैं, कल को फंडिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो दैट्स द आइडिया, दैट्स व्हाट वी वांट टू डू विद ICP. ICP, as I've already told you कि it's a L1 that is a blockchain और ये अपने आप में एक L1 है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। ये US बेस्ड है, US और यूरोप बेस्ड है, स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप। और ICP इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट ताकि वो एक पैरेलल इकोसिस्टम बना सके, एक ऑल्टरनेटिव बना सके बिग Web2 कंपनीज जैसे कि गूगल Amazon के लिए, और वो बना सके। Now they have a fund of $220 million that they want to deploy in the world via various activities. So this is in short about ICP. How to get started. If you want to be part of this program or if you want to be part of this community, it's very simple. हम आपके कॉलेज में एम्बेसडर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नॉर्मली बनती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, देन PR मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर। तो इसके एक आपकी जो है वो क्लब बनेगा आपके कॉलेज में, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनेगी। एंड देन यू हैव टू बी एक्टिव इन द क्रूसफेयर इकोसिस्टम बिकॉज हमारे पास बहुत सारे गिव अवेज आएंगे। जैसे मैं आज भी आपको ICP के टोकन देके जाऊंगा एज एयर ड्रॉप। सो दीज थिंग्स कैन हैपन। एंड हम लोग जैसे अभी हमारा ऑलरेडी गिव अवे चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर जहाँ पे हम लोग VR हेडसेट और मैं अपनी बुक एज अ गिव अवे दे रहा हूँ, सो दैट you guys get to it. So it's a very simple activity कि आपको जस्ट अपने सोशल मीडिया पर जा करके you have to write about क्रूसफेयर, your experience of this session, and आपको hashtag क्रूसफेयर एक्सपीरियंस शेयर करना है। ट्विटर या लिंक्डइन यूज कर सकते हैं। तो वो आपको ट्विटर पे भी मिल जाएगा ये कैंपेन, एंड देन यू कैन विन दैट बुक एंड VR हेडसेट फॉर फ्री। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। इस सेशन के एंड में हम लोग जैसे एयर ड्रॉप भी करेंगे, मैं उसका भी आपको एक बार बता देता हूँ। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, वेरी सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एक्सेट्रा। तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। हाउ टू गेट स्टार्टेड, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी की तरह कर सकते हैं। अरित्रा, आप ये लिंक एक बार इनके साथ सर्कुलेट कर लेना। जो लोग अभी स्क्रीन पे हैं, जो फोन से नहीं कर रहे हैं, वो इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं कम्प्लीटली, एंड इट विल बी वेरी इजी। तो आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, क्रूसफेयर ICP इंडिया हब, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट होना है वहां पे। देन विल टेल यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप इस ग्रुप पे पूछ सकते हैं, एंड विल हेल्प यू इन दैट। नेक्स्ट इज, अगर आप इफ यू वांट टू गेट एयर ड्रॉप तो आपको वॉलेट बनाना पड़ेगा। वॉलेट के लिंक्स यहाँ से मिल जाएंगे, एंड्रॉइड का और iOS का। अगेन अरित्रा, यू कैन सेव दीज लिंक्स एंड शेयर इट विद योर कम्युनिटी, तो ताकि ये लोग डाउनलोड कर सके। तो एंड्रॉइड के ऊपर भी आप बना सकते हैं और iOS के ऊपर भी अपने वॉलेट्स बना सकते हैं। एंड देन उसके ऊपर इट्स जस्ट लाइक एन पेटीएम वॉलेट, और आपको रिसीव का एक एड्रेस आएगा आरबिट नंबर्स और डिजिट्स का, वो आपको कॉपी करके उस ग्रुप पे डाल देना, एंड देन विल एयर ड्रॉप यू सम टोकन्स। So that's the idea. So that's about it. If you have any questions, I'm open to Q&A session, and feel free to ask your questions. तो अगर आप किसी को भी क्वेश्चन पूछना है, they can unmute themselves और वो पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। Guys, do you have any questions? You talked about blockchain security course. Isn't the blockchain already completely secure? So the question is, the blockchain in itself is completely secure. For example, we talked about Ethereum.
सो इथेरियम को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो सिक्योरिटी वी आर डूइंग इट वाया कंप्यूटिंग, माइनिंग और कंप्यूटेशनल पावर. बट द कंपनीज दैट आर बिल्डिंग ऑन द टॉप ऑफ ब्लॉकचेन, जो डैप्स आ रही हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस आ रही हैं, उनके कोड ऑडिट करने होते हैं. तो उनके ऑडिटिंग प्रोसेसेस होते हैं जिसको हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग भी बोलते हैं. तो उनके लिए ऑडिटिंग फॉर्म्स होती हैं जो कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के अंडर आती हैं. तो इट्स नॉट एग्जैक्टली कि वो ब्लॉकचेन L1 को सिक्योर कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज उसके ऊपर बन रहा है उनको सिक्योर कर रहे हैं. सो दैट्स द आइडिया. तो उनमें बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है. इट्स अ $1 billion मार्केट इन इटसेल्फ, जहां पर इतने सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं एंड दे चार्ज एनीथिंग बिटवीन $10,000 to $20,000 और $50,000 जस्ट फॉर द दीज थिंग्स. तो ये आइडिया है मेनली. I hope you have answered your question. Any other question? Guys, any other question? Right. So I believe we do not have more questions. So that's it, guys. Thank you for joining. अगर आपके कुछ और डाउट्स हो तो feel free to ask them on the group, or feel free to discuss it there as well, and we can discuss it there. और secondly, आप if you want airdrop तो हम आपको ₹100 worth के ICP token set करेंगे. You can join the group और आप उस group पे जाकर के उन्हें claim कर सकते हैं. Thank you guys. Thanks a lot. Bye bye.